Hello and namaste. Welcome Namaste, namaste. everyone who's watching Lajja TV. I'm your hostess Vandana Joshil, and it gives me immense pleasure to come back to you in this special month of March where we celebrate women across the world. Before we go on to talking about women across the world and their achievements and talking about this wonderful guest that we have today, let me tell you a little bit about Lajja. Lajja is a forum for women, by women, with women, working towards the development and empowerment of women. Remember, the focus here is on development because we believe that women are already empowered. All that we need is a little bit of push, a little bit of encouragement, and loads of learning. So that is what we at Lajja aim to do. We started in 2014 and ever since have set up chapters in Mumbai, Delhi, Pune, Ahmedabad, Hyderabad, and are soon going to launch in a few more cities. So stay tuned till we get back to you with news on that. And today, March 15th, just a couple of days post the International Women's Day. And yes, we need to celebrate women every single day of the year. But thankfully, there is one particular day which is earmarked for women. And we've seen all communities, all forums, and everyone across the world conducting seminars, workshops, giving out awards, and doing so much more to celebrate women on International Women's Day. We at Lajja believe that every single day is a day to celebrate women. And so, while we did celebrate Women's Day by first arranging a picnic for our Mumbai chapter, we had lunch gatherings across all other chapters. We're also having something amazing happening uh, throughout the month. But today, March 15th, we will start off by celebrating one special woman who has done so much in her field and who inspires so many of us and who does so with such class and such beauty at her age. So let me tell you a little bit more about who this wonderful lady is. Joining us today is the beautiful, charismatic, and graceful Sandhya Ranade. She is a published author in Marathi, and in her writing journey of close to 5 decades, mark it, 5 decades, she has written over 21 books, which include novels, collection of short stories, transition from English, 21 books, which include novels and a collection of short stories, translations from English, biographies, and scripts of two plays, one of which was based on her own award winning story. Stories written by her for the Diwali Ank, which is a Diwali special magazine, have been translated into English, Hindi, Gujarati, and Kannada. She has conducted Katha Kathan, which means storytelling, on Pune and Mumbai Akashvani and in various cities of Maharashtra. So please put your hands together and welcome the wonderful, the beautiful, the graceful Sandhya Ranade ma'am. Ma'am, we welcome you Namaste. on screen. You have to start your video. Yes. Put it right video. Video चालू करायचं आहे. Yes. Video चालू आहे आणि तुम्ही आमच्या स्क्रीनवर आहे. वेलकम संध्या जी, बहुत बहुत खुशी हुई. मेरी मराठी थोड़ी सी कच्ची है and I am ashamed to say that क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पड़ी हूँ. समझ सकती हूँ पर बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है. So I will stick to Hindi and English अगर आपकी इजाजत हो. No, it's all right, but even I can speak fluent in Hindi. But since many of us, many of the spectators, they don't know Marathi, so I have to speak in Hindi. So please excuse me because oh no, ma'am, we are very very happy. And I'm very thankful to you that Riddhi ji and you invited me on Lajja forum. I will thank you. Please accept my sincere thanks.
थैंक यू सो मच मैम। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम लज्जा टीवी पे ये कोशिश है हमारी होती है कि हर जगह से, दुनिया से, मतलब हमारे देश से, देश के बाहर से, जहां से भी हमको कोई इंस्पिरेशनल वुमन मिले, हम उनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं ताकि हमारी औरतें देखें इनको, हमारी औरतें इनसे सीखें और हमारी औरतों को समझ आए कि हम सभी के लाइफ में चैलेंजेस आती है, हम सभी को बहुत टेंशन होते हैं, घर संभालना होता है, बच्चे संभालना होता है, अपनी खुद की पहचान संभालना होता है, बट इन ऑल ऑफ दिस हमको हमारे करियर्स बनाने होते हैं, हमको अपने आप को बढ़ाना होता है। तो इस पूरे जंग में वी हैव टू रिमेम्बर नॉट टू फॉरगेट आवरसेल्व्स, एंड when women like you come and tell us this and share their stories with us, it gives us all the more inspiration. So without wasting any further time, tell me or tell us about your journey as an author. आपने कैसे ये शुरू किया और आपको क्या, what was the inspiration कि आपने लिखना शुरू किया? जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में थी तो आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी विथ माय मॉम. My parents, both my parents were good readers, so I also started reading at quite an early age. And while reading that, I had some awareness that I can also write like this. But आपको विश्वास नहीं होगा कि स्कूल में जो ऐसे लिखना पड़ता है ना, वो जब लिखने को बोलते थे तो 3 या 4 लाइंस के आगे मैं लिख ही नहीं पाती थी. मुझे कुछ याद, अभी क्या लिखना ऐसा होता था. तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इतना सारा राइटिंग करूं, या all fields of Marathi literature, like taking interviews, novels, translations, dramas, katha kathan, storytelling. We call katha kathan in Marathi. So I did all that. I wrote some poems also, which are not published anywhere, but I tried to write poems also. So I started first when I was after my marriage. I thought कि मैंने लिखना शुरू करना चाहिए क्योंकि मेरे मन में बहुत कुछ आता है लिखने जैसा. तो उस समय में मेरी बड़ी बेटी है गौरी, उसके साथ मैं प्रेग्नेंट थी उस समय, उसके टाइम पे. तो वो प्रेगनेंसी में ही मैंने वो कथा पूरी लिख दी. और पुणे का एक बहुत फेमस मैगजीन है माहिर, सो इट वाज प्रिंटेड इन दैट मैगजीन. और अप्रैल 1966 में वो मेरी पहली जो कहानी थी वो माहिर में छप गई थी. और in the same month my elder daughter Gauri was born. So मेरा पहला वो जो साहित्यिक अपत्य जो बोलते हैं वो और मेरा खुद का अपत्य दोनों एक ही महीने में, एक ही ईयर में they are born like that. Wow, that is so amazing. That is so amazing. And then I kept writing. I continued my writing. So I used to write that. काफी कम समय मिलता था, उसमें भी मैं थोड़ा टाइम निकाल के मैं पूरा करती थी अपना लेखन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो इससे ये हमको पता चलता है कि जब नॉर्मली क्या होता है प्रेगनेंसी में, अगर एक ऑफिस में जाने वाली लेडी होती है तो हम बात करते हैं कि कैसे वो ट्रेन में धक्का मुक्की खाते हुए ऑफिस जाती है और हम बोलते हैं कि अरे बाप रे इसने बहुत बड़ा काम कर लिया. या अगर घर पर है तो हम बोलते हैं कि वो घर भी संभालती थी और प्रेग्नेंट भी थी. लेकिन आप एक मिसाल हो कि आप प्रेग्नेंट भी थे, आप घर भी संभालते थे और आपने इतना, मतलब to be able to write a book at that time and to get it published is quite an amazing task. क्योंकि like you said, वो टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं और उसको पेपर पे लिखना और फिर उसको, I mean at the same time of having your baby, to also see that I'm sure it must have been quite an experience. This is wonderful. So there is no right time or wrong time. There is no right or wrong to when to start writing, whenever you want to do. I mean, not just writing, anything for that matter. तो कभी-कभी लोग मुझे पूछते हैं कि आप एक साथ 3 या 4 घंटा बैठ के लिखती है क्या? तो मैंने बोला इतना टाइम मेरे लिखने के लिए मुझे कभी मिला ही नहीं.
तो लिखती थी, कुछ काम करती थी, लिखती थी, दोनों बच्चियों को संभालती थी, कुछ काम करती थी घर का। और हमारे घर में आना जाना बहुत लोगों का चलता रहता था, तो उसमें भी मैं बहुत बिजी थी। एक ही बात है कि मैंने कभी, आई वॉज नेवर वर्किंग वुमन, मुझे घर से बाहर जाके मैंने जॉब कभी किया नहीं है, तो वो टेंशन मुझे नहीं था। तो घर में बैठकर मैं ये कर सकी, टाइम निकाल सकी उस समय। नहीं, पर घर में बैठ के भी यूजुअली क्या होता है, हम घर पे बैठे तो हमको और किसी चीज के लिए वक्त नहीं मिलता है। तो अगर कोशिश करो, अगर चाह हो, तो हम अपने आप के लिए और अपने मनचाही चीज करने के लिए हम वक्त बना सकते हैं। दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर। तो एक बात बताइए, इन दीज 5, आप इतने करीब ऑलमोस्ट अभी 5 डेकेड्स हो गए हैं आप लिख रहे हो, आपने कई टाइप्स की बुक्स लिखी है, आपने कई टाइप के स्टोरीज लिखे हैं, एंड obviously it's natural to have women as an element in your Yes, stories. Or yes. so is there a difference in the kind of women that you see? Because for a writer, I think inspiration comes from seeing the people around them. So do you see any difference in the outlook of women from 50 years back to the outlook of women now? Is there a change, एक transition हुआ है कि नहीं, कि हम वहीं पे वहीं के वहे है? नहीं, ट्रांजेक्शन तो हुआ है जरूर, बहुत बदलाव आ गया है, क्योंकि हम लोगों का जमाना और आजकल जो मैरिड लड़कियां होती है, तो वो ऐसा सोचती है कि नहीं, अगर मैं लिख सकती हूँ तो मुझे मेरा टाइम चाहिए, मैं 4 घंटे घर का कुछ नहीं संभालूंगी। तो ऐसा उस समय ज्यादा हमको ऐसा कभी किसी को बोलने को आता ही नहीं था। और फिर भी आई एम सॉरी, माय हिंदी इज नॉट दैट ग्रेट, No, no, so no please problem, excuse ma'am. me if there are mistakes। लेकिन थोड़ा तो बदलाव आया है। और आजकल वीमेन को एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, सब महिलाएं बहुत ज्यादा, उनको बाहर एक्सपोजर मिलता है, तो उनके लिखने के टॉपिक्स कुछ अलग होते हैं, सब्जेक्ट्स खूब बहुत अलग होते हैं। लेकिन मैं तो, मेरा पूरा लाइफ मेरा वैसा घर में गया है, तो किसी किसी के बारे में घर में कोई दूसरे लोग कुछ बात करते थे, तो मैं पूछती थी कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। तो ऐसे बातों बातों में ही मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे कहानियों के लिए इंस्पिरेशन मिला है। तो आपकी कहानियां, अभी की कहानियों में आप एक ज्यादातर मॉडर्न वो वुमन सत्य को, पर आधारित है, ज्यादातर कुछ हाँ चेंजेस किया है उन्होंने। हाँ, तो आपकी अभी की कहानियों में औरतें ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा आउटगोइंग है, ज्यादा इंचार्ज है, कि ऐसा कुछ कैरेक्टर चेंज है क्या आपके स्टोरीज में? स्टोरीज में तो है, लेकिन एक खास करके मैं आपको बता सकती हूँ, एक जो मेरी नॉवेल है जो अभी कन्नड़ में छप गई है, हाँ धारावाहिक कादम्बरी जैसी, तो उसमें मैंने ऐसा ही एक कैरेक्टर, एक लड़की का पोर्ट्रेट किया है कि उसको जब शादी नहीं करनी थी, तब ससुराल वालों ने बोला कि हमको आपकी लड़की बहुत पसंद है, तो हम मेरे बेटे से शादी करवा दो। तो उसके मन के खिलाफ उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसको पढ़ना था बहुत, तो हाँ उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको पढ़ाएंगे आगे भी। और वो खाली बीएससी पास हो गई तो बोली हमने पढ़ाया, आप ग्रेजुएट हो गए, अब घर में बैठो। तो हाँ उसमें वो गट्स थे कि नहीं, मैं आगे भी पढ़ूंगी। तो वो डबल ग्रेजुएट होती है, वो डॉक्टरेट करती है, फिर उसका नौकरी करने का मानस होता है, तो घर में बोलते हैं आपके नौकरी की कुछ जरूरत नहीं, घर में बहुत सब आलबेल है, तो आप घर में ही बैठो। और एक बच्चा बीच में, उसको एक बच्चा होता है, और एक बच्चा हाँ हमको चाहिए, और एक नाती हमको चाहिए। तो ऐसा करके तो उन्होंने सुना नहीं, जो उनको चाहिए था, वो जो जो वो करना चाहती थी वो सब उसने किया है अपने मन से। लेकिन फिर भी उसने जो अचीव किया, तो उसके ससुराल वाले बाद में बहुत उस पर खुश हुए थे कि अभी हमको समझता है कि क्यों आप इतनी डिटरमिन्ड थी कि आपको कुछ करना है। तो वाह, हमारे जमाने में बाकी लोगों के, ज्यादातर लड़कियां तो हमारे जमाने में करियरिस्ट नहीं थी, लेकिन आजकल जो है वो अपना अपना दे फुट डाउन कि हमको ये करना है, तो ये टाइम हमारे लिए है। ऐसा हमारे जमाने में नहीं था, तो वो बदलाव आया है। और बाकी तो नेचर
हर एक औरत का डिफरेंट होता है, वो अपने बिल्कुल नेचर के जैसा उसका नेचर है वैसा ही वो उसकी बिहेवियर रहती है, उसका बोलना, उसका ये सब उसी तरह होता है। तो ऐसा बोल नहीं सकते कि वो उस टाइम हमारे जमाने में कोई नहीं ही थी, कई लड़कियां थी, लेकिन आजकल ज्यादा है क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस है, because they are earning, they are going out, they have got exposure, they have got confidence with it. बिल्कुल वो बिल्कुल। हमारे तो में नहीं था इतना ज्यादा। तो इससे एक वन क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इज नाउ is there there is क्योंकि हमारी women have changed from a time जहाँ पे वो सबकी बात मानती थी और अपने आप को पीछे रखती थी और बाकियों को प्रायोरिटीज देती थी या प्रायोरिटाइज करती थी, और अभी की औरतें जहाँ पे अपने आप को प्रायोरिटी दे रही है एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड डूइंग व्हाट दे वांट टू डू, is there is there a sense of breakdown of that age old belief that it is a woman who जो उन्होंने makes that. घुसपट जो सहन की है जो, हाँ हाँ, तो they were suppressed. So yes. अभी ये sort of rebelling. So is this rebellion good? Is this rebellion good? Is it good for the benefit of not just the women but all those people around them? नहीं, हर एक चीज को दो बाजू रहती है, तो एक तो बाजू ठीक है कि वो रिबेलियस है तो वो जो उनको चाहिए वो हासिल कर सकती है, लेकिन ज्यादा ही रिबेलियस होने में, इफ यू आर पोलाइट इनफ टू कन्विंस योर इन लॉज और योर फैमिली मेंबर्स तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो जो उनका करेज है उसको उसके साथ आगे बढ़ सकती है, तो वो अच्छी बात है। The only thing is you shouldn't be rude with your family members and all. Absolutely. That's what I want to tell you. You should try to convince them, and even after trying also they don't listen to you, then you have to be rebellious sometimes. Yes, so apni hak ki, at least in this era. In this era, absolutely, yes. Absolutely. Now coming back to that कि आपके बुक्स में, आपके स्टोरीज में काफी औरतों को आपने पोर्ट्रे किया है. Tell us about your most strongest female character that आपने लिखा है. ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके जहन में रह गया हो और आपको लगा है कि मेरी सारी फीमेल कैरेक्टर्स में दिस वन इज माय टॉप मोस्ट फेवरेट, और अगर ऐसी कोई है तो क्यों है? थोड़ा सा है, कम ज्यादा थोड़ा हर एक औरत में रहता है, लेकिन जो अभी मैंने नॉवेल को आपको बताया ना कि वो जो उसको चाहिए था वो ठीक तरह से बात करके उसने हासिल कर लिया, एंड शी प्रूव्ड हरसेल्फ, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो उसने प्रूव कर दिया कि मैंने जो किया वो कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कुछ अच्छा पाया है उसके, तो वो तो है। लेकिन बहुत सारे हैं कैरेक्टर्स मेरे जो कभी एडजस्ट करती है कभी नहीं करती है, तो जनरली आई डोंट पोर्ट्रे sort of arrogant women, or I don't like that type of women. कभी कभी वो आ जाती है कथाओं में, क्योंकि जो हीरोइन है वो तो इतनी कभी ज्यादा नहीं रहती थी रिबेलियस या एरोगेंट ऐसी, लेकिन उसके आजू बाजू कोई रहता है तो वो ठीक तरह से सामना कर लेती है, तो ऐसे कुछ औरतें हैं मेरे इसमें। मेरी एक कहानी है तुझाच साठी, जस्ट फॉर यू, तो उसमें मैंने ऐसा ही दिखाया है कि जब वो पहला पति उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने को शुरू करता है, वो दे वर सेटल इन यूएस, सो उधर जाके वो उसमें चेंज हुआ और वो बहुत तकलीफ उसे देने लगा, तो उसने डिवोर्स लिया, अपने बच्चों को ठीक तरह से पाला, और जब उसको अच्छा जीवन साथी मिला तो उसने उसके साथ शादी कर ली और अपना लाइफ आगे बढ़ाया उसने, तो ऐसा है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कैरेक्टर भी ऐसे है। That is so important. ऐसे प्रोग्रेसिव लिटरेचर, प्रोग्रेसिव थॉट्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि जनरल बिलीफ ये है, अनफॉर्चुनेटली अभी के टाइम में भी ये जनरल बिलीफ है कि अगर अब्यूज है, यू नो
क्या सह लो आप वो अब्यूज को सह लो, मारपीट हो रहा है तो आप सह लो, आप बच्चों की खातिर एटलीस्ट फैमिली बनाए रखो। बट अगर आप जैसे राइटर्स ऐसे लिखते हैं कि इट इज ओके टू move out of an abusive marriage, Yes, it is okay to step out of that, and yes, yes, it is so important क्योंकि हाल ही में मैं कुछ नॉट टीनेजर्स, अर्ली 20s की कुछ लड़कियों को मिली थी, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द सेम रिग्रेसिव थॉट्स कि मैंने तो बोल दिया घर पे कि मुझे पढ़ाई करना है, अभी घर वाले टेंशन में है कि लड़की इतनी पढ़ रही है, शादी के लिए रिश्ता नहीं आएगा, एंड देन ऐसी बातों बातों में दे स्पोक अबाउट अ फ्रेंड ऑफ theirs who's in an abusive marriage, और बट हाउ कैन शी लीव हिम। तो तभी ये सवाल आता है कि अगर हम बोलते हैं कि हम इतने प्रोग्रेसिव है, और अगर हमने एक डिफरेंट जनरेशन को पाला है, बड़ा किया है, और ये जनरेशन भी ऐसा ही सोच रहा है कि हाउ कैन शी लीव एन अब्यूसिव मैरिज, देन हमने शायद सही सीख नहीं दे पाए हम इन लोगों को। कभी कभी ऐसा लगता है। यू टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, कभी कभी जब घर छोड़ना पड़ता है और उसमें खुद में करेज है तो वो अपने अपने बलबूते पे खड़ी रह सकती है, तो इट्स ओके फॉर हर। ये उसने बाहर निकलना ही चाहिए, बाहर कदम रखना ही चाहिए, इंस्टेड ऑफ टॉलरेटिंग ऑल द नॉनसेंस विच इज गोइंग इन द फैमिली एंड ऑल। तो मेरे ऐसे मुझे किसी ने बताया था, आई थिंक आई रिमेम्बर, गौरी हैज टोल्ड मी, माय डॉटर, दैट एक लड़की थी तो उसको बच्चा नहीं होता था, तो जब सब उनके टेस्ट हुए तो ऐसा उसमें डिटेक्ट हुआ कि वो उसके हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम है। तो शी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो वो बोली ठीक है ना, तो हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। तो वो बोला कि मैंने ऐसा, किसी ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया हुआ और अनाश्रम में पल रहा, वैसा बच्चा मेरे घर में मेरा बच्चा बन के नहीं आएगा। तो वो बोली कि ऐसा तो होता ही नहीं है ना, हर एक बच्चे को जब वो उनके माँ या पिता छोड़ देते तभी तो वो अनाथ आश्रम में आते हैं ना, अपने घर में अपना बच्चा कोई दे नहीं सकता। तो उसकी सासू माँ बोलती है कि हम लोग किसी को बताने वाले नहीं है कि वो जो फॉल्ट है, वो जो प्रॉब्लम है वो मेरे लड़के में है, हम लोग सबको बताने की प्रॉब्लम मेरे बहू में है। सो आज से मदर कि किसी को बताना क्यों चाहिए? एब्सोल्युटली। हाँ, आपको जरूरत नहीं है कि हम दोनों में से किसी के किस में फॉल्ट है, क्या सही है क्या गलत है, तो वो हम डिसाइड करेंगे ना, उनको आपको बताने की जरूरत नहीं। तो वो नहीं, ये लोग बोलेंगे कि मेरे ही बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं नहीं सह सकती हूँ, तो सभी को मैं ये बताने वाली हूँ। वो सुनती नहीं, जो कोई रिश्तेदार कोई फ्रेंड्स आते हैं उनको बताते क्या करे, हमारी तो बहू ऐसी है उसमें ये, तो वो बहुत दिन उसने टॉलरेट किया। और उसकी एक बहन गुजर गई थी तो उसकी बच्ची में और इसमें खूब बहुत सारा लगाव था। वो लेकिन अपने जेठानी की, अपनी ननद की, सबके बच्चों को बहुत प्यार से ही ऐसे करती थी। तो लेकिन उसके हस्बैंड को, उसके सासू माँ को पसंद नहीं था कि वो अपने बहन के घर, बहन नहीं थी ना, तो उधर जाना, वो छोटे बच्ची को गले लगाना उनको नहीं पसंद था। तो बोले ठीक है, तो तुम मुझे मेरा बच्चा दो, अनाथ आश्रम से मुझे चलेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं उसके घर में नहीं जाऊंगी, उसकी माँ नहीं है, वो मुझे मासी के नाते से बहुत मेरे करीब है दिल के, तो मैं जाती रहूंगी, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए इस घर में। तो वो नहीं सुनता, वो बोलता है कि वो मेरी माँ को पसंद नहीं आएगा, घर में किसी को पसंद नहीं आएगा, तो हमने, तो बहुत दिन उसने सहा। और जब उसको राइट पार्टनर मिला, वो जो उसका बहन का ही हस्बैंड था, उसकी ननद बोली उसको कि तू ये मत सहना, मेरी माँ और मेरा भाई जो अन्याय तुम पे कर रहे हैं, तो स्टॉप टॉलरेटिंग दिस नॉनसेंस, यू हैव टू लीव दिस हाउस, टेक डिवोर्स फ्रॉम माय ब्रदर, एंड वो जो है उनका कैरेक्टर मैंने मोहन भाई लिखा है, तो मोहन भाई से शादी कर लो। तो वो बोली कि तुम मुझे इतना फोर्स कर रही हो, लेकिन तुम्हारे जो भाई और माँ है वो तुमसे नाराज होगी, तुम्हें चलेगा, मैं मोहन भाई में ही मेरा भाई देखूंगी और उनके माँ में मेरी माँ दिखाऊंगी। सो उसकी जो ननद थी वो पूरा उसका सपोर्ट था कि मेरे भाभी को अच्छा लाइफ मिलना चाहिए। तो ऐसे भी कैरेक्टर्स रहते हैं।
तो ये दिस इज सो अमेजिंग कि हम जनरली जब बोलते हैं ना कि औरत ही औरत को नीचे खींच के लेके हम्म, आती है, लेकिन हम्म, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे औरत एक दूसरी औरत को सपोर्ट करती है। तो हाँ, दिस इज सो नाइस कि आपने इसके बारे में मेंशन हाँ, किया, क्योंकि एट लज्जा हम यही कोशिश करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि हम जैसे लाइक मैं, हमारी जो फाउंडर है रिद्धि, और जो हमारे बाकी लज्जा मेंबर्स है, हम ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक सपोर्टिव फैमिली है। यस, हमारे पास ऐसी एक ऐसे हस्बैंड्स है जो बोलते हैं कि हाँ तुम आगे बढ़ो, तुमको जो करना है करो। तो हम बोलते हैं कि जब हमको इतना प्रिविलेज मिलता है, हम ये प्रिविलेज औरों पे क्यों नहीं यूज करें, हम क्यों नहीं और औरतों को हेल्प करें और उनको आने ऊपर हाँ, आने की के लिए अच्छा, मदद कर सके। हाँ, तो हाँ, आपकी ये जो स्टोरी में जो ननंद आप है, ये आई बहुत थिंक अच्छा हमारे लज्जा के लिए बिल्कुल परफेक्ट यस, है। नहीं, आप तो दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो थैंक महिलाओं यू, को इतना थैंक यू, सपोर्ट दे रही है। थैंक यू मैम। तो एक और क्वेश्चन, क्योंकि आपने इतने सारे वीमेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात की है, आपके बुक्स में लिखते भी है, आपके हिसाब से अभी ऑलरेडी आपने तो ये तो कह दिया कि आपकी ये जो ननन कैरेक्टर है, उन्होंने अपनी भाभी को प्रोत्साहन दिया, उन्होंने अपनी भाभी को ये भी एक सोल्यूशन दिया कि आप अब मेरे भाई को छोड़ के मोहन भाई के साथ चले जाइए। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू stops a woman from reaching her goal? What is it that limits her? तो उस कहानी भी तो ऐसा था कि वो, उसको हस्बैंड से उसको बहुत प्यार था, लेकिन जब से वो अपने माँ के बलबूते में आके वो जो माँ बोलेगी वही मैं करूंगा, ऐसा उसका स्वभाव जब ज्यादा ज्यादा ऊपर आने लगा, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाई वो। तो उसको करेज इतना था कि वो घर छोड़ देगी, वो दूसरी दूसरी शादी करेगी, वो ऐसा, और वो मोहन भाई से ही करेगी, ऐसा उस करेगी, ऐसा उसके कुछ मन में नहीं था। लेकिन जब उन दोनों ने खुद से खुद आके पूछा कि आप मोहन भाई की माँ ने कि अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरी बहू बन सकती है, और ऐसा, तो किसी न किसी के सपोर्ट से उसने वो डिसीजन लिया है। वो खुद अपने, उसको टाइम लगता था वो, क्योंकि वो पहला प्यार उसका हस्बैंड जो था उसको भूल नहीं पाती थी। बिल्कुल। लेकिन उसने बहुत नीचे क्या बोलते हैं लेवल पे वो गया, उसकी हम्म। बिहेवियर, उसका सब बोलना, सब वो उसको टॉलरेट नहीं हुआ। तो हम्म। अच्छा, अच्छा है वो जो किया उसने, वो अच्छा है। हम्म। बिल्कुल। हाँ, सो यही होता है कि अगर आप में वो करेज है, आप में वो कन्विक्शन है, और आप में वो सारा हिम्मत और ताकत है जो साथ में आप किसी और को बढ़ा सके, तो मेरे हिसाब से आपको वो करना चाहिए, आपको अगर लगता है कि ये सही है। हम्म, बट एट द एंड ऑफ द डे एक ये भी बात है कि आपको एडवाइस देने के लिए, आपको प्रोत्साहन देने के लिए काफी लोग आएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका होता आपका है। होता है, अगर उसका आप होता है। चाहे कि आप बढ़ना चाहे या आप कुछ बदलाव लाना चाहे, तो आप स्वयं कर सकती है, और कोई आपसे करवा नहीं नहीं, सकता नहीं है। करवा सकता। बहुत बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगेन आपके बुक्स हाँ, में इतनी सारी विमेन कैरेक्टर्स हैं, अगर ऐसा एक कैरेक्टर हो जिससे आप चाहे कि वो बुक में से बाहर निकल के आपके आमने सामने बैठे और आप उनसे एक कॉन्वर्सेशन कर पाए, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर होगा जिससे आप बात करना चाहेंगी? ये मेरे तीनों हीरोइंस, जब आपको मैंने अभी बताई, एक जो घर छोड़ के गई थी, एक जो जिन्होंने घर वालों को कन्विंस किया, और एक जो, और जो मैंने बोले ना वो अपने हस्बैंड को छोड़कर बच्चों को लेकर दूसरी शादी की, यूएस में है। हाँ। तो उसको तो बाद में इतना उसका बैड लक था कि जो बहुत कुछ एक उम्दा आदमी उनको मिला था दूसरी शादी के हम्म। बाद, तो उसको एक्सीडेंट, दिस इज अ रियल स्टोरी। तो ओके। उनका एक्सीडेंट हुआ और वो यहाँ से नीचे तक का सभी पोर्शन उनका पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया। हाँ, तो वो खाली बोल सकते थे, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो बाद में फिर उस उनको वो उसको बोलने लगे कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे कितने दिन रहोगी, तो तुम लाइफ में आगे बढ़ो। तो वो बोलती थी कि नहीं, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। जो सहारा आपके यहाँ मुझे मिला है, जो आपका जो स्वभाव, आपके जो बिहेवियर, आपका सब जो मुझे एक आश्वस्त करता है कि यहाँ मैं आपके साथ सुरक्षित हूँ, आपके साथ मेरी ग्रोथ भी होती है,
तो मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती, और वो नहीं जाती थी। तो उसको उनके हस्बैंड को वो बहुत मन को ऐसा वो भाया कि वो इतनी अपने साथ अपने को इतना प्यार करती है, इतना सब कंफर्ट्स, मेरे सब कंफर्ट्स का इतना ख्याल रखती है। तो वो बोले कि ये ठीक है, तुम नहीं जाओगी वहां तो ठीक है, लेकिन खाली एक बार मेरे लिए जरा वो क्योंकि बोलते बोलते उसकी आंखों में पानी आया था, तो वो बोले एक बार मेरे लिए मुस्काना। तो आंखों में पानी था, फिर भी वो मुस्काई और बोली कि तुझ्यासाठी, फक्त तुझ्यासाठी मी आता हे हास्य आहे, ऐसा ऐसा वो। लवली। हाँ, तो ऐसे ही औरत को मुझे जब कभी मिलने का चांस आया तो मैं जरूर मिलूंगी। वाह, करेज बिल्कुल। और लगता है। मुझे, आप मुझे भी इनवाइट करिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा ऐसे जरूर लोगों से जरूर। आके मिलने। बिल्कुल। मी हाँ, सांगितलं होतं माझी मराठी थोडीशी नाही नाही, असू दे असू दे. वीक आहे, हो, पण हरकत नाही. आता मला असं वाटतंय की हम्म, मी ही तुमचा बुक्स वाचावं. खरीदूं मैं आपके बुक्स और उनको पढूं, जरूर क्योंकि जरूर. अ, इतने इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप लिखते ये, हो, बहुत मन करता है पढ़ने का। एंड हाँ. लाइक आई सेड राइट एट द बिगिनिंग कि मेरी मराठी थोड़ी कच्ची नहीं है, नहीं नहीं, पढ़ आप अच्छे सकती बोल हूँ, लेती लेकिन तो है. मैं जरूर ट्राई करूंगी, आप बहुत बिल्कुल। अच्छे बोल लेते हैं, और पढ़ना अगर थैंक, आपको इंटरेस्ट है तो जरूर पढ़िए, मैं आपको भेज बिल्कुल सकती बिल्कुल, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। हूँ. जरूर. तो बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा है। हाँ. अगर हमारी औरतों को आपको कोई मैसेज देना हो कि अपने साथ क्या करना चाहिए, आपका क्या मैसेज होगा, क्या संदेश होगा हमारी लज्जा लेडीज के लिए, जो आपको वॉच करेंगी, जो आपकी बातें सुन रही है, जो हमको लाइव सुन रहे हैं, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? अ, पहली तो ये बात है कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं किसी को एडवाइस दे सकूं. एज में बड़ी है मैं ना नहीं बोलती, लेकिन हर एक को अपना अपना बाजू में जो सिचुएशन उनकी रहती है. कभी कभी औरतें ज्यादा पढ़ी नहीं रहती, तो उनको समझ में नहीं आता कि अगर मैं घर छोड़ दिया तो मैं अपने आप को, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकूंगी या नहीं. अगर अकेली भी हो तो मैके के घर में जाना, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी के साथ. तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो टॉलरेट कर लेती है, लेकिन जो जो औरतों में करेज रहता है, वो कॉन्फिडेंस रहता है, उनको आत्मविश्वास रहता है कि इनको छोड़ के मेरा लाइफ ज्यादा अच्छा मैं कर सकती हूँ. तो जिनको इतना कॉन्फिडेंस है, जिनमें इतनी क्षमता है, तो इंस्टेड ऑफ टॉलरेटिंग ऑल द नॉनसेंस एंड अब्यूज ऑल, शी शुड लीव द हाउस. तो इतना तो मैं बता सकती हूँ कि जिनको पॉसिबल है वो जा सकते हैं, नहीं तो जैसा ज्यादा से ज्यादा खुद को खुश रखने के लिए कोशिश करना, दूसरों को खुश रखने. समटाइम्स इट हैपेंस दैट नोबडी इज हैप्पी इवन इफ यू डू अ लॉट फॉर देम. दैट इज द सिचुएशन समटाइम. But otherwise those who can stand on their own feet, they should. इतना मैं बता सकती हूँ. एब्सोल्युटली। तो संध्या मैम, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सी और इंसाइटफुल चीजें हमें बताई है। हमारे साथ अभी जुड़ने वाली है हमारी एक लज्जा ग्रोथ प्लेटफॉर्म मेंबर। तो मैं आप चाहूंगी कि आप स्क्रीन पे रहे, क्योंकि हमारी जो मेंबर है वो खुद को भी इंट्रोड्यूस करेंगी, फिर उसके बाद वो आपसे भी एक प्रश्न पूछेंगी. और हमारी ये लज्जा ग्रोथ प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पूरे लज्जा में तो हम डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट की बात करते ही है, लेकिन ये जो लज्जा ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, इस पे हम फोकस्ड अटेंशन हमारे मेंबर्स की ग्रोथ पे करते हैं. तो हर महीने हम उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस, लर्निंग सेशंस लेके आते हैं, जहाँ पे from as simple as how to manage your kitchen and organize your kitchen, to how to manage your business and how to promote yourself, how to market yourself, ये सारी चीजें हम हमारी मेंबर्स को सिखाते हैं. तो इसके लिए हमारे पास मेंटर्स आते हैं, इसके लिए हमारे पास लोग आते हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, जो एक्सपर्ट्स है, और ऐसे लोग आके हमारे मेंबर्स से बातें करते हैं, उनको एक लर्निंग सेशन देते हैं. तो आज की हमारी लज्जा ग्रोथ प्लेटफॉर्म है मीना शाह. Meena is an educator. Meena has
let me just call Meena. Yes, Meena is an educator who has made daily school revision and practice games fun. Meena is she's a curriculum planner and an author of 25 workbooks for children. So we have another author Yes. also sitting with us. She is the Uh, founder of Star Child Education and Learning, which mm. is India's first dedicated revision and practice portal. She's a lifelong learner, passionate about her work, and she enjoys reading and playing word games. So, Meena, I ask you to tell us a little bit about yourself. Meena, please meet Sandhya Ranade ma'am, who is an author and who's written wonderful books in Marathi, and these books have been translated into English, Hindi, Kannada, and many other languages. So, first you tell us about yourself, Meena, and then you get an opportunity to ask Sandhya ma'am a question. All yours, Meena. Hope it's not a very difficult question. Namaste, namaste. Namaste, namaste. Thank you so much Thank for you. being there for Lajja and for all the women My pleasure. who are attending. And it is such an inspiration to see someone like you who's written such wonderful stories. Thank you. And yes, I'm so glad to see that they're being translated. That was one of my questions. Are they going to be translated or not? Yes, yes, yes. So I have lived in Mumbai all my life. So of course I Yes. know a bit of Marathi, but I cannot speak it fluently, nor can No, I no, it's okay. It's okay. read so much of it. Hmm. However, I would love to read your stories. So I think Thank you. Thank you so much. Vandana, yeah, thank you. And so Vandana, thank you so much. She has already introduced me, so I don't think I have much to say. But I do believe, that children need a very strong base, a strong foundation. And that is why we started Star Child, which is, like we said, a dedicated revision portal for children. So children can come here and actually revise through 10 levels of a game, and this is nothing but their school subjects. So Okay, this makes practice and revision easy. It makes it fun. And if, I'm sure all of you would agree that, if learning is fun, who wouldn't do it? Yes, yes. Absolutely. Yes, yes. Right. So that's what we are doing. And so ma'am, I've always thought, I've always been thinking of writing stories for children, but I've still not had the opportunity. So are you writing stories for children? Sorry, I couldn't write any literature for kids. So that is one thing I have not been able to do so far. But if I get a chance, I will like to do that for them. How nice, how nice. And, I also noticed Vandana was talking and she was talking about all the strong women characters that you have written about. So are these characters all from real life? Are you inspired by real life? Yes, most of them. I talked about 3 women and the stories based on their life, it's all real life stories. I have to make some changes, कुछ बदलाव मुझे लाना पड़ता है लिखने के टाइम, क्योंकि क्या होता है कहानी की शुरुआत, वो बीच में कहानी का थोड़े डेवलपमेंट और अंत में उसका वो जो ये एंड होता है, तो वो सब एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी मिली होती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, तो बाकी सब मैं अपने मन से बैकग्राउंड और या डायलॉग्स एंड ऑल, तो वो मैं अपने मन से लिखती हूँ. Right. So have you Lovely. received some training regarding that, or is it your talent? No. It's just I went on writing and I'm still continuing it. Right now also I am translating a book, English book into Marathi. It's an inborn passion that Sandhya ma'am has. It's only passion, no training. I'm not highly educated. Or I just feel like writing and I can write. वो उस ऊपर वाले की मर्जी है, उन्होंने दिया हुआ टैलेंट है वो. Lovely. Thank you, Meena. Your list of questions will be never ending. So thank you, Meena, for coming on the Lajja TV episode and talking about yourself. And for all of those who are listening, please remember that learning is fun if you make it fun, and learning is better and enjoyable when it has a fun element to it. So thank you, Meena. And Sandhya ma'am, before we end, one last मराठी मध्ये 2 शब्द आमच्या महिलांसाठी. मराठीत सांगू,
हे बघा, माझ्याजवळ लेखनाची कला आहे. पण प्रत्येक स्त्रीजवळ कुठली ना कुठली तरी कला असते. तर घरचं तर करण्यात कुणाची सुटका नसते. त्या प्रत्येकाला घरातलं सगळं सांभाळून, माणसं सांभाळून, काम सांभाळून, नातेवाईक सांभाळून असं सगळं करावं लागतं. तर त्याच्यातल्या त्याच्यात स्वतःच्या कलेला जर देता आला वेळ तर तो द्यावा. आणि खूप बायका करतायत. मी खूप अशा ज्यांच्याकडनं आपल्याला स्फूर्ती घेता येईल अशा इन्स्पिरेशनल बायका मी खूप पाहिल्या की जे माझं लेखन आहे ते त्या पुढे काहीच नाही. मी तर घरात बसून लिहिते, पण बाहेरच्या जगात प्रवेश करून सुद्धा तिथे कर्तबगारी दर्शवणाऱ्या महिला खूप आहेत. कोणी पायलट्स आहेत, कोणी आर्मीत जातात, कोणी आणखीन काय काय करतात. म्हणजे आजकाल त्यांना एक तर क्षेत्र पण बरीच मिळालेली आहेत. अव्हेन्यूज खूप मिळत आहेत लोकांना त्यांची कला सादर करायला म्हणा किंवा बिझनेस करण्याच्या दृष्टीने. तर ज्यांना ज्यांना जे जे शक्य आहे त्यांनी ते जरूर करावं. मला फक्त इतकंच जमलं तेवढं मी केलेलं आहे. नाही नाही आणि मी मॅम, दरवेळेला असा विचार केला की मला येईल का ट्रान्सलेशन करावं. असं जेव्हा मला वाटायचं, मी इंग्लिश पुस्तकं वाचत असताना माझ्या लक्षात आलं की म्हणजे माझ्या असं मनात यायचं की अरे याचं मराठीत वाक्य असं होईल असं होईल. तर ते असं करत करत मी धाडस केलं की नाही, मला लिहिता येईल. तर मग डिक्शनरीच्या मदतीने, गुगलच्या मदतीने माझं खूप लेखन छान, चालू असतं. खूप छान. आणि मॅम, ज्यांना जमेल त्यांनी कोणताही सगळ्यांनी क्षेत्र, करावं. हो हो, कोणताही क्षेत्र मोठा छोटा नाही. नाही. Housewife is just as important as a pilot. A pilot is just as important as a surgeon. Every field is important, and every field, if it is done with the passion and with the conviction, जिस तरह आपने किया है तुमच्यासारखी, I think women will reach places. So thank you so much, ma'am. Thank you so धन्यवाद, much for आप हमारे inviting me. लज्जा टीवी पे आए और Thank you इतनी so much. ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी प्यारी बातें हमसे की. All of those who are listening to us, please forgive me if my Hindi and Marathi have gone all over the place. लेकिन मैंने थोड़ी सी ये कोशिश की है, and ये I पहली hope बार, मेरी पहली कोशिश थी हिंदी में बात करने की. तो आपने भी बहुत अच्छा किया है. Thank you so So much. congratulations to you, Thank you. all of you who are listening to us. A happy International Women's Month to you, because actually an entire year to you, because हर एक दिन हमारे लिए उतना ही important है. हर एक दिन एक नया सवेरा है, एक नया opportunity है, and let's make the best out of each day that we get. With that, I thank all of you. I thank you, Sandhya ma'am. I thank you, Meena, for joining us. And I sign off with love, and we'll see you again next month on the 15th. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Yes. Yes, thank you for having me too.